Go to that document now and let's follow the step by step which we will do. Yeah, so go to step 1, new, and create a Maven project. You can split your screen into two. File, new, Maven project. Yeah, now scroll down and check what should be there next. Document, no, follow the document, no. So it is saying over there what? Simply click next, do not modify anything. Okay, so click on next. Next. Okay, so in the catalog, search in all catalog internal. Adusha, just follow the document. See the document what I have done. In the catalog, type internal, and in the filter, type quick, and double click this. Yeah, or select and go do next. Now next slide. Yeah. So here in the group ID, you will give your company domain name in reverse order. So give com.inumtech. And artifact ID, you will give the name of the project which you want to see on the Eclipse. So if you see in your Eclipse behind, whatever names you see over here in the project, give that project name over here. So my first Hibernate. So how you have given all DSA applying streams. Okay, yes. And now what it will do is it will concatenate the group ID and artifact ID and make your base package. So this is your base package, com.inumtech. My first Hibernate. Okay, if you want, you can change the package name if you want to, or else keep it, no problem. Then so now what Maven does is, now see it is creating a project over there, 33% complete, bottom right. So if the project gets stuck at 33%, okay, just scroll down towards the right documentation. See, I've written over there. If the project creation is taking very long and is stuck at 33%, go at the end of the console. So go at the end of the console, it will ask you to enter a capital Y. One second, it hasn't asked yet, it will ask you. So let it do. Now check at the end. So now if you see over here, it is asking you for a Y. So enter a capital Y and hit enter. And now your project build success. Okay. Yes. So now scroll down towards the documentation and check what is there next. Okay. Now what we have to do, we have to, so if you go to your project and you expand your project, close this, minimize the console, go to your project, minimize this console. Yeah. Now expand your project, my first Hibernate. So you see a file called pom.xml at the bottom. So this is the advantage of using Maven. So now whatever jars you want to know, just mention a dependency in the POM XML. So open that, double click the POM XML. So here it has this format. So now whatever type of jars you want, you just have to mention a dependency over here. So see, it has added one dependency, line number 18 to 23.
it is for what? JUnit, right? So if you expand your Maven dependencies, just above that SRC folder, expand that, you will see there for no Maven dependencies above SRC. So you will see there some jars for JUnit. Okay. So how did this jar get added over here? Because a dependency is mentioned in the POP XML, correct? So if I want to add all the jars for Hibernate, what do I do? What do I have to do? Yes. So now we were searching for the dependency for Hibernate. So toward the right side window, search for Hibernate Maven. See, in Google I have given this prompt, right? So go there. Hibernate Maven, and go to this MVN repository website. Yeah. And now the version which we are working on, what is the version? Check 5.5.7, right? In the documentation. Yeah, the scroll down in the left window. So you will have to go to that particular version. So keep on scrolling down. Yeah, so there are many other pages. Go to page number 7. Check if it is there in that 5.5.7, right? So we'll have a standard version for everywhere. Not there. Go to page number 9. Okay, so 5.5.7. Is it there here? No. Go to 10. It's there. Click on that. Yeah, click on that. 5.5.7. Yes, click. And now it will show you the dependency. Just copy that. Scroll down. Scroll down. Now copy this dependency. Yeah, just click and it will copy. Copy the dependency. Yeah, copy it and paste it in the POM XML. The dependencies. Okay. No, 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 not outside. Control Z. Control Z. Hello, Abdul Shakur. यस, कंट्रोल जेड डिपेंडेंसीज के अंदर, डिपेंडेंसीज पेरेंट के अंदर डिपेंडेंसी आएगा। हाँ, इसके अंदर, हाँ। अब अभी सेव करो तो देखो बॉटम राइट पे एक हो रहा है प्रोग्रेस बार, दिख रहा है? वो इंटरनेट से आपके सारे डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर रहा है अभी, दिख रहा है? तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अपना मैवन डिपेंडेंसी में देखना आपको बहुत सारे जार्स मिल जाएंगे। वो सारे जार्स जो है वो इसके है, हाइबरनेट के जार्स रहेंगे। तो मैवन का ये एडवांटेज है, आपको जार्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर उसको ऐड करते बैठो बिल्ड पाथ से। सिर्फ यहाँ पर एक डिपेंडेंसी ऐड करना है, सेव करेंगे तो वो इंटरनेट की स्पीड के, देखो आ गए। हाँ, तो अभी भी देखो डाउनलोड कर रहा है, तो लेट इट द डाउनलोड कंप्लीट 100%। जब तक डाउनलोड कंप्लीट नहीं तब तक कुछ मत करो। और इंटरनेट ऑन चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि वो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है। तो अभी क्या कर रहा है, क्या आपके हार्ड डिस्क पे उसने डाउनलोड कर दिया एक जगह पे। नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे ना, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करेगा, आपके हार्ड डिस्क से ले लेगा वो। तो कहाँ कर रहा है वो सेव, आपको दिखाता हूँ। सी ड्राइव में जाओ, यूजर्स में जाओ, नीचे नीचे, यूजर्स नीचे। हाँ, एडमिन पब्लिक में जाओ, पब्लिक में जाओ, नहीं बैक जाओ, बैक एडमिन में जाओ। तो उसमें देखो .m2, देखो .m2।
ये रेपोजिटरी आ गई थी। तो वो ऐसे इस फोल्डर में जाके सारे आपके रिपोजिटरीज दिख रहा है। 11 तारीख को 9:46 पे। हाँ, रिपोजिटरी में जाओ और रिपोजिटरी में देखो सारे जहाज यहाँ पर दिख रहे हैं जो उसे डाउनलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लाके रख देता है वो .md फोल्डर में। नेक्स्ट टाइम वो ऐसे पिकअप कर लेगा। जाओ आपके उसमें जाओ, क्लिप्स में जाओ। अगर आप गौर करोगे तो देखना पाथ, देखो पाथ क्या है, दिख रहा है सी यूजर एडमिन .m2। तो आपके अभी हाइबरनेट भी आ गए। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो डॉक्यूमेंट में क्या है। ठीक है, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो डेटाबेस अपना एसक्यूएल है। तो एसक्यूएल आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो एसक्यूएल का? वैम यूज़ कर रहे हो क्या? हाँ, तो ये देखो दिख रहा ना डिपेंडेंसी, तो उसकी डिपेंडेंसी ऐड कर दो तो उसकी जार कॉपी हो जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे कॉपी कर लो डिपेंडेंसी जो मैंने डाला है। ठीक है, उसको डाल दो, सेव कर दो, तो उसकी भी जार हो जाएगी डाउनलोड। सेव करो, देखो वो डाउनलोड कर रहा है ना। और जाके अभी देखो लेफ्ट में, देखना सेकंड सेकंड, देखो सेकंड नंबर पे आ गया जार एसक्यूएल का, है ना। वेरी गुड, जाओ अभी नेक्स्ट स्टेप लो। ठीक है, अब क्या करना है देखो अपने को, जो अपना एस आर सी मेन जावा है उधर एक नया फाइल बनाना है। हाँ, फाइल का नाम देखो क्या क्या दिया है, पहले वो देख लो ताकि कॉपी पेस्ट करने की आसानी हो। हाँ, नीचे जाओ, नीचे हाँ नीचे नीचे जाओ, नीचे जाओ। हाँ, क्या नाम दिया? hibernate.cad.xml। क्या नाम दिया फाइल का? हाँ, तो आपका जो एस आर सी मेन जावा फोल्डर है ना, वहाँ राइट क्लिक करो, ये फाइल बना दो। एस आर सी जावा, हाँ, राइट क्लिक करो, न्यू, और यू वांट टू मेक एक्सएमएल फाइल आल्सो, मेक एक्सएमएल फाइल। अदर में जाओ, एक्सएमएल दो। तो या तो आप कुछ और नाम दे दो जो आपको देना हो, या ये नाम दे दो। ये नाम का एक एडवांटेज मिलेगा पर आपको, क्या है? hibernate.cfg.xml। ठीक है, फिनिश कर दो। हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या डालना है। हाँ, तो ये तो ऑलरेडी है। फिर नीचे आओ, नीचे जाओ, और नीचे आओ। हाँ, और नीचे आओ, और नीचे आओ, नीचे ये जो है ना तीन है ब्लैक लाइन, ये कॉपी पेस्ट करके डाल दो उधर, ऊपर 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 आइए, ये उसके नीचे डाल दो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जाओ, नीचे जाओ और नीचे जाओ। हाँ, अब ये भी डाल दो कॉपी करके ऊपर। ये है ना हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा, हाँ, ये पूरा। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन तक, हाँ। नहीं, लास्ट लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में देखेंगे। बस ये, ठीक है। अब ये आ गया ना आपका। ठीक है, जाओ उधर, उधर लाल लाइन क्यों दिख रहे हैं, उधर जाओ। लाल लाइन दिख रहे हैं बहुत सारे। तो एक काम करो, आपके विंडो जाओ, विंडो में जाओ, मैवन में जाओ, शो व्यू में जाओ। और गुड प्रेफरेंसेस, विंडो में प्रेफरेंसेस, यस। और जाओ मैवन में, और लास्ट के दो को भी चेक कर दो और अप्लाई करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके डेटाबेस का सब लगाना, मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमाइज पेज को, एक्लिप्स को मैक्सिमाइज कर दो। एक्लिप्स को मैक्सिमाइज कर दो।
तो अभी आपका डेटाबेस ड्राइवर यही है JDBC का। हाँ, अब आपके पास कोई डेटाबेस है माई हाइबर नाम का, या बना लो डेटाबेस कोई दूसरा, तो उसका नाम यहाँ दे देना है आपको। ये जो भी आपको डेटाबेस बनाना है उसको बनाओ, तो यहाँ पर उसको दे देना। यू वांट यूजिंग द वेब वाला। हाँ चलो ठीक है बना लो। हाँ, हो गया अभी इसको, ठीक है ये भी ठीक है, चलो जाओ उधर अभी। अब ये भी ठीक है, डेटा का नाम, डेटाबेस का यूज़र नेम रूट है, सही है। पासवर्ड सही है, डायलैग भी सही है, ठीक है, बाकी सब ठीक, चलो ठीक है, ये सब ठीक है। चलो अब आगे जाओ, नेक्स्ट। ठीक है। अब एक अपना जो है ना हाइबरनेट, जो अपना पैकेज बना है, बेस पैकेज, लेफ्ट में उधर जाके एक क्लास बनाओ, ड्राइवर ऐप। हाँ देखो इसमें रहेगी, देखो एक्सपांड करो उसको, रहेगी उसमें। हाँ है ना, ऑलरेडी एक क्लास है उसके अंदर। बस, तो ये जो कोड है यहाँ मेन में पेस्ट कर दो, जो कोड लिखा है ना उधर। हाँ ये कॉन्फ़िगरेशन से, हाँ ये कॉपी कर, यहाँ इसको निकाल दो, हाँ पेस्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट ओ करके इंपोर्ट कर लो। तो अपना ये ORG हाइबरनेट से ले लो, ORG हाइबरनेट से। ठीक है। तो अभी आपकी फैक्ट्री बन गई, ठीक है। तो अभी आपकी फैक्ट्री ओपन हो गई है, तो लास्ट में लिखा है इज क्लोज, तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फैक्ट्री ओपन हो गई ना। हाँ, क्लोज नहीं कर रहे, चेक कर रहे हैं अपन, इज क्लोज्ड। हाँ तो रन करो, अभी अभी ये कोड रन करो। अगर आपके स्क्रीन पे फॉल्स आ गया, मतलब आपका कोड रन हो गया, यानी आपका फैक्ट्री बन गई, मतलब और फैक्ट्री तक तो आ गए अपन। अब आपने, हाँ जाओ जाओ एप्लीकेशन। ठीक है, अगर वो दिख रहा है फॉल्स, मतलब फॉल्स आ गया, फैक्ट्री तो बन गई। ठीक है, कल अपन सेशन क्रिएट करेंगे। ओके।